series of success stories at MBA Litmus. We have somebody amazing here. I think many of you would have already met Jaskaran. Jaskaran has been a part of the program. Welcome Jaskaran. How are you doing? IIT IIM Guy अगर आप देखना चाहते हो, IIT IIM Guy. बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर IIT IIM Guy कैसा होता है, क्या सर पे सींग होते हैं, ठीक है, क्या अलग एकदम अलग सोचता है बंदा. आज सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी यहाँ पे जसकरण के साथ. जसकरण इज़ फ्रॉम IIT Delhi and is now going to IIM Calcutta. So Jaskaran, welcome. How are you doing today? I'm doing great, sir. Absolutely amazing. All right. So Jaskaran, सबसे पहले तो अभी IIM Calcutta is now finalized. You have also done IIT Delhi. Do you think for an IITian it is easier to crack CAT and get into B schools? How do you look at it? It helps in the waiting part before the interview. When you're interacting with other guys, it gives you some brownie points in their eyes. But once you enter the room, it actually hurts you from being an IIT because they have higher standards from you now. So अगर तुम्हें नहीं आता है academics का या कुछ भी, they frown upon it. Yes, they will. And beyond that, do you also think that the CAT preparation part is easier for an IITian versus a non-IITian? I don't have much experience with non-IITian guys, but for me, quant was easier, and VARC में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई. For me, it was always DIRR which was a bit challenging, but I'm sure that we can't generalize this because I have friends from IIT Delhi only who attempted CAT, and for them it was entirely different. For them, VARC was tougher and DIRR was easier. But quants was generally easier for everybody. Quants, yeah, IIT guys have a firm grip on quants. Certainly. So that is one hypothesis which we are now validating, now that you are here. Jaskaran, थोड़ा सा, let's talk about moving from IIT to IIM. How did the thought come in? When did you think कि भाई अब IIT मैंने कर लिया है, मैंने थोड़ा काम कर लिया, अब मुझे IIM जाना चाहिए. What's the game plan? For me, the way it happened was that I got placed into a consultancy firm, and I really liked the job profile here. But then I figured out कि सिर्फ BTech के बाद तो इतनी opportunity नहीं मिलती है यहाँ पे. So अगर तुम्हें इस domain में जाना है, so you need to have a management degree. So I was like, let's go to the top management schools now. Correct. So you went into consulting after IIT, and then you thought that to build up inside consulting, it's a good idea to get into management. Right. That's the thought process? Right. Perfect. So I think rightly decided that you are now moving into, and obviously IIM Calcutta is going to be a great avenue. But going back in your story, Jaskaran, how was CAT preparation journey? कैसा schedule रखा? बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, prepare कर रहे हैं, उनको what is the game plan that you would want to give them? कि कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? Right. So मेरी job start हुई थी मई में, and I started my CAT preparation in June. So June, July, August, September, October, November. I prepared for 6 months. और मेरा schedule ये रहता था कि I just adopted that कि early to bed and early to rise, कि मैं 9 बजे सो जाऊँगा और सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा, और फिर ऑफिस जाने से पहले अपने 3 से 4 घंटे निकाल लूँगा अपनी प्रेपरेशन के लिए, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो रीडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है. और उससे ये रहता था कि एक बार मैंने ऑफिस जाने से पहले अपना काम कर दिया तो उसके बाद मैनेजर जितना मर्जी काम दे दे शाम को, वो टेंशन नहीं रहता कि मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है इसके बाद. ओके. अगर टाइम मिलता है तो शाम को भी पढ़ लेंगे, अगर नहीं मिलता है इट्स ओके, मैंने सुबह 4 घंटे निकाल लिए. तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये है कि अगर आप मई जून में स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 घंटे अप्रोप्रिएट होने चाहिए. 4 hours do you think is good? I think it's good क्योंकि I think 4 hours. And what was again the split of those 4 hours, Jaskaran? मतलब would you dedicate into every subject? QA, DLR, VRC तीनों कर रहा है, या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, 2 सब्जेक्ट्स उठा रहा है, मतलब प्लान कैसे करता था उसको? Right. So I always had trouble with DILR, so that was a constant for me कि मुझे हर रोज DILR की प्रेपरेशन तो करनी है, और उसके साथ मैं QA या फिर उसमें VARC में से कोई एक उठा लेता था. तो आई वुड डू सच के मैं 4 से 5 सेट्स उसके DILR के किए, और फिर उसके बाद मैंने या तो QA के क्वेश्चंस कर लिए और VARC की रीडिंग कर ली. अच्छा, सो रीडिंग करते थे या RC सॉल्व करते थे? मेरा ये रहता था कि अगर मैंने RC रीड कर लिया है तो मेरे क्वेश्चंस ठीक हो जाते थे,
But for a long time in those 6 months span, it was such that I was only able to read through 3 RCs only. So मेरे लिए बैरियर बढ़ा दिया था कि मैं 4 RCs कैसे वो करूँ, अटेम्प्ट करूँ. तो उसके लिए I just focused on my reading speed. Okay, so you were working on reading speed. So you're reading more to increase reading speed. Right. Perfect. Understood. So that is about the 6 months. And what was the mock plan in terms of taking mocks, Jaskaran? How did you go about it? कितने मॉक्स किए? कभी मॉक्स क्या साथ में ही तैयारी के साथ में मॉक स्टार्ट करना चाहिए फॉर ऑल द पीपल हु आर ऑल्सो वर्किंग वुड वांट टू नो. राइट, आई वुड से कि तैयारी स्टार्ट ही मॉक से होती है, क्योंकि कैट का सिलेबस तो बहुत आसान है ऑन पेपर, इट्स 10th तक का सब कुछ आएगा. सो टू फिगर आउट कि तुम्हें कहाँ पर वर्क करना है, यू नीड टू स्टार्ट विद मॉक्स जिसमें तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं. जस्ट पिक अप दैट टॉपिक और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओ. और मेरा शेड्यूल ये रहता था कि आई वुड गिव अ मॉक अ वीक. हर सैटरडे या संडे में एक मॉक देता था, और लास्ट वाले 2 मंथ्स में मैं हफ्ते के 2 मॉक्स देता था. अंडरस्टूड. एंड ये पूरी की पूरी जर्नी करने के बाद में हम इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जसकरण, फॉर पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो लोग तैयारी के साथ में काम भी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अगर 2-3 सेंटेंसेस यू वुड वांट टू गिव देम. नाउ यू आर एंड आई एम कैलकाटा गाय after an IIT guy. So I think matlab you have, obviously you are in a in a position to give some relevant inputs to people who are now preparing. So what would those 2-3 pointers be कि क्या क्या चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के अंदर एक पुश नहीं आ पा रहा है, तो क्या पॉइंटर्स होने चाहिए? तैयारी के लिए जो मेन चीज़ आई वुड से जो इमीडिएटली क्लिक करती है कि इसके ऊपर तो ध्यान पक्का देना. इट्स लाइक डोंट लूज ट्रैक ऑफ के तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है अभी, कि तुम किस चीज़ पर फोकस कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से और क्या वो इम्प्रूव हो पाई या नहीं हो पाई. फॉर एग्जांपल मेरे किसी लेट्स से वर्क स्पीड डिस्टेंस जो टॉपिक होता है, अगर उसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं एंड आई वर्क ऑन इट फॉर 2 वीक्स, क्या वो मार्क्स इंप्रूव हुए, एंड अगर इंप्रूव हुए लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक जो मेरा और वीक है. तो जितने भी तुम मार्क्स दे रहे हो, एनालाइज देम. It's very important. So mock analysis is important, you are saying. Right, because that's the only way you can keep track of your progress. Otherwise, सब कुछ हवा में. Absolutely. So I think I keep telling everybody that mock analysis is very important, and so does Jaskaran also. So mock analysis को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. Jaskaran, so how would you go about your self mock analysis? एक तो mock analysis हम भी करते थे. Right. But self mock analysis कैसे करते थे तुम? How would you go in terms of analyzing at your end? Right. So for me, self mock analysis came before I joined your sessions. क्योंकि फिर आपके सेशंस में जाते हुए आई नो कि कौन से टॉपिक्स के मुझे ध्यान रखना है. आई एम जस्ट वेटिंग कि आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, और जब आप सॉल्व कर रहे हो ऑलरेडी हैव अ पिक्चर इन माइंड कि मैंने ये किया था और आप क्या कर रहे हो. ठीक है. और जब मैं उनको सॉल्व कर रहा होता था, आई जस्ट फोकस्ड ऑन फॉर द इनिशियल 3 to 4 months, आई जस्ट फोकस्ड ऑन के मेरे गलत कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं. सो लेट्स जस्ट वर्क ऑन रिड्यूसिंग अ नेगेटिव मार्क्स, कि क्या मैं इनको छोड़ सकता था, या फिर अगर गलत हो रहे हैं तो टाइम लगाया तो सही तो करना अच्छा लगता है. सो करेक्ट. क्या मैं इनको सही कर सकता था. सो बेसिकली सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देते थे कि सिलेक्शन स्ट्रैटेजी मेरी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है. Right. जो क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ वो सही में आसान क्वेश्चंस हैं या मैंने गलत क्वेश्चंस उठा लिए. हाँ, डेफिनेटली. और उसके अलावा मेरा ये रहता था कि इन द लास्ट मंथ आई रियली, क्योंकि मेरे पास अब पिछले 20-25 मॉक्स हो चुके थे जो मैंने कर रखे हैं, तो आई रिमेंबर कि आई जस्ट वेंट रियली नर्डी विद इट, और मैंने एक एक्सेल शीट बनाई. उसके ऊपर, क्योंकि जो अपना डैशबोर्ड रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है कि तुमने कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया. तो आई रिमेंबर कि मैंने एवरेज टाइम भी निकाला था, क्योंकि VARs में मुझे टाइम की दिक्कत आ रही थी. तो उसी के ऊपर मैंने कितने मिनट्स लगाए, और जो पैरा जंबल्स वाले हैं उसके ऊपर उन्होंने एवरेज कितना टाइम लगा रहा हूँ, और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने एवरेज कितना टाइम लगा रहा है. और मैं निकल गया था कि मैं पैरा जंबल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ उन्होंने एवरेज, और उससे मेरे एवरेज मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं थ्रू आउट दोस 25. तो फिर मैंने सोचा था कि पैरा जंबल्स को हम एंड में करेंगे, पहले बाकी कुछ कर लें जिससे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और तो टाइम भी कम. इससे फ़ायदा मिला? इससे फ़ायदा, आई गॉट रियली लकी, क्योंकि मेरे वाले में वो क्या बोलते हैं, जो वो ओड वन आउट वाला था वो मेरा सबसे वीक था, और मैंने सोचा था कि इसको मैं बिल्कुल एंड में करूँगा. पैरा जंबल्स के भी बात करूँगा, और मेरे वाले कैट में ओड वन आउट आया ही नहीं. Yeah, absolutely. So I think
ये एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सब लोगों को. मैं भी कहना चाहूँगा कि आप एनालिसिस के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए. हम लोग वी विल बी डूइंग अ सेपरेट सेशन ऑन मॉक एनालिसिस ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड दैट सेशन ऑल्सो. जसकरण, कमिंग टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, हो गई तैयारी, स्कोर बन गया, एंड उसके बाद इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं. सो हाउ वाज द प्रिपरेशन लाइक? सो व्हाट्स द स्कोर दैट वी हैड जसकरण इन कैट? The score I had was it was 95.6 percentile. I don't remember the score exactly. ओके. एंड उसके बाद फिर लेट्स से वी टॉक अबाउट कि इंटरव्यू करना है, भी इंटरव्यू के लिए फिर सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना है, कैसे करनी है तैयारी. True. सो इंटरव्यू के लिए क्या बताना चाहोगे सबको कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन एज पर यू? I would say कि the biggest challenge I faced during the interviews was कि मुझे सब कुछ पता है कि जो मैं गलत किया है अभी तक. तो going into the preparation to any mock interview मेरे दिमाग में वही रहता था कि मुझे पता है मैंने क्या क्या गलत किया है and clearly I'm not good enough for this. But the thing is सामने वाले को वो नहीं पता है, so you need to believe in yourself कि ठीक है अच्छा हो जाएगा. और मैंने आपकी एक सेशन में सुना था कि यू नीड टू बी इंटरेस्टिंग इन एन इंटरव्यू, कि सामने वाला तुमसे बात करना चाह रहा है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग तो वो तुम्हारी शॉर्ट कमिंग्स पर जाएगा भी नहीं, क्योंकि यू आर गिविंग देम समथिंग टू टॉक अबाउट. तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट, तो वो तुम्हारी जो तुम लीड कर रहे हो तुम उसी में से क्वेश्चन पूछता है वो, और एक बार वो खत्म हो जाए फिर वो अपने क्वेश्चन पूछेगा एंड दैट इज़ अ नाइटमेयर फॉर यू, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकता है. करेक्ट. तो आई वुड से कि फाइंड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ व्हिच आर यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, और कोशिश करो कि सामने वाला उसके बारे में बात करे. मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए थे जो एक्चुअल वाले दिए हैं, और सिर्फ आई एम इंदौर वालों ने उसके ऊपर कैच ऑन नहीं किया, बाकी सब में उन्होंने मेरे इंटरेस्ट से ही पूछा मुझसे. Understood. So, Jaskaran, I think finally with all the calls, and I think most of the calls you had, there are top calls. IIM Calcutta, FMS, Kozhikode were the top calls. Yeah. All 3 converted. I think FMS भी अपना nearly converted ही है. हाँ. Calcutta converted है और Kozhikode भी converted है. हाँ. So many congratulations to you. Yes. It is absolutely thrilling, and it was great having you here, for lunch. And we made sure that we had some fun also, interactions, but I'm hoping that everybody is going to get inspired by this conversation. Work hard. Do you think only IITians can make into the top tier colleges? Definitely not, sir. The stats speak for themselves. All right. So that is coming from an IITian. That's only not only IITians that are going to really make it. So you can all do it. We can all effectively put in our efforts, give it our best. It's important to learn from the achievers, people who've been there, done that. It's important to take tips and start implementing in our lives also. Any final pointers that you would want to give them before we let them go? I would say कि just focus on the things you can control. तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के भी क्या फ़ायदा. अभी के लिए जब तक कैट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रेपरेशन में कितने घंटे लगा सकते हो तुम उस पर फोकस करो, और इंटरव्यू के टाइम पे जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होंगे उन पे ध्यान देंगे. सो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के ऊपर काम करें. अभी जितना भी टाइम आप डाल सकते हो डालना शुरू करो. जितने लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, कैन गेट स्टार्टेड. इट्स मे ऑलरेडी. डू नॉट डिले योर प्रिपरेशन. यू विल हैव द प्रिपरेशन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गेट स्टार्टेड टुडे and start gunning for a top B school in the upcoming season. Thank you so much everybody for joining in. Thank you Jaskaran for a wonderful conversation. God bless everybody. Take care and bye bye.